Good morning, students. In today's lecture, we will discuss about the vapor compression system in our RAC class. So, as the name indicates, vapor compression. So, we will use the refrigerant vapors, compressed them in a compressor to do and then uh, these compressed vapors absorbs latent heat from the substances to be cooled in the evaporator, and then these vapors reaches the compressor where they are compressed isentropically, and then they pass through the condenser where they lose the absorbed heat and again reaches the evaporator. So we will discuss in detail. So first of all, what is vapor compression system? In today's scenario, this system is used widely in almost all the domestic and commercial applications. Whereas in large air conditioning systems like airplanes, air cycles are used. Now, before going to discuss this refrigeration system, first of all, we will discuss what is process. When in the refrigeration cycle, we have basically four main parts, and the refrigerant passes one by one through these four parts and gets changed its uh, properties. So, how we define a process? So, when a refrigerant passes through a number of changes in state or conditions, each of which is called a process. For example, when a refrigerant passes through a compressor, its pressure increases. So, at the inlet of the compressor, there is low pressure vapors, and at the exit of the compressors, there are high pressure vapors of the refrigerant. So, there is a change in the properties of the refrigerant, that is pressure change from low to high. So, we will say that the refrigerant has undergone a one process in the compressor. Now, next is cycle. How we define a cycle, refrigeration cycle? So, I have told that there are basically four parts: evaporator, compressor, condenser, and expansion valve. When a refrigerant passes through all these four parts in a particular sequence and reaches the initial point, then we will say that the refrigerant head has completed one refrigeration cycle. And this is a closed cycle. So this cycle is repeated again and again to do the required cooling. एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है
और हीट को टेक ऑफ कर लेगा और एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा, और पीछे जो बच जाएगा हमारा पानी ठंडा बच जाएगा. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल वेपर कंप्रेशन. We will discuss the, you can say, line diagram or flow diagram of simple vapor compression system. So there are basically four main parts. First one is this evaporator, second one is compressor, then this one is condenser, and fourth one is this expansion valve. And in between the condenser and expansion valve there is one receiver tank. You can say evaporator, compressor, condenser and expansion valve. These are the four basic parts. So we will discuss one by one. First we will take, say, compressor. So this is the compressor, okay. This is the compressor, okay. So refrigerant enters this compressor through this suction line, okay. We have marked it as point 1. At the entry of the compressor we have marked point 1. So low pressure and low temperature dry refrigerant vapors coming from the evaporator through the suction line enters this compressor, okay, during the suction stroke of the compressor. Suction stroke means that is when the piston, say, moves downwards, the inlet port, or you can say valve of the compressor, opens, and this low pressure and temperature dry vapors enter the compressor cylinder, okay. It means that when the piston moves from TDC, top dead center, to bottom dead center position, okay. Now as the piston starts moving upward from BDC to DDC, means bottom dead center to top dead center, okay, the inlet valve is closed, as well as the you can say exhaust valve is closed. So the piston isentropically, I am repeating again, the piston isentropically compresses the refrigerant vapors, and it raises its pressure, okay, to a high pressure. Or normally the temperature is also higher than the condenser cooling medium. So we can say that the temperature and pressure of the refrigerant vapor increases in the compressor, okay. अब ये कंप्रेसर ऑपरेट कैसे होता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर से भी ऑपरेट हो सकता है, इंजन से भी ऑपरेट हो सकता है. इट मीन्स वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क as its input to the system, okay. Now we will take the second part, say condenser. अब सेकंड प्रोसेस कंडेंसर में जो होता है कंडेंसेशन. इक्विपमेंट का नाम है कंडेंसर, और इसमें जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज कंडेंसेशन. अब हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट एंटर्स this condenser through this suction line in this way, okay. Now and this high pressure vapors, refrigerants,
loses its latent heat to the condenser cooling medium। कोई भी मीडियम हो सकता है कंडेंसर में, कि रेफ्रिजरेंट की हीट, लेटेंट हीट हमारे कंडेंसर कूलिंग मीडियम, चाहे वाटर सर्कुलेट कर रखा हमने, ओके, इस तरह से वाटर सर्कुलेट कर रखा है, इधर से एंट्री इधर से एग्जिट, तो ये वाटर को दे देगा अपनी लेटेंट हीट, रेफ्रिजरेंट वेपर्स। और जब लेटेंट हीट टेक अवे करेगा, डिस्चार्ज करेगा रेफ्रिजरेंट, तो इसकी फेज चेंज हो जाएगी। तो हाई प्रेशर वेपर से हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट बन जाएगा। ओके, तो थर्ड प्रोसेस आता है हमारे पास, और ये लिक्विड हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट रिसीवर टैंक से होता हुआ, इस लिक्विड लाइन से होता हुआ हमारा एक्सपेंशन डिवाइस, जो कि एक्सपेंशन वॉल्व है या कैपिलरी है, किस तरह का है, उसमें एंटर करेगा, जहाँ पर इसकी थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन होगी। ओके, अब इस एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि ये दिस हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट loses its pressure to become a low pressure liquid। तो हाई प्रेशर लिक्विड से लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा इस एक्सपेंशन वॉल्व में हमारा रेफ्रिजरेंट। ओके, और ये बेसिकली हम थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन करते हैं। ओके, प्रेशर इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि वेपोराइजेशन ईजिली हो जाए आगे इवेपोरेटर में। नेक्स्ट फोर्थ प्रोसेस है वेपोराइजेशन, जो कि हमारा इक्विपमेंट का नाम है इवेपोरेटर में होगा। ओके, अब इवेपोरेटर हमारा समझने के लिए फर्स्ट इंस्टेंस वो प्लेस है जहाँ पर हमारी फूड आइटम्स या जिस आइटम को हम प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं लंबे टाइम तक, वो रखी हुई हैं। ओके, कि ख़राब होने से बचाने के लिए उनको इवेपोरेटर में रखी हुई हैं। जैसे हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में हमारा आइस बॉक्स फॉर एग्जांपल, या अंदर वाला स्पेस है जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं। ओके, क्लोज स्पेस। इस इवेपोरेटर इक्विपमेंट में वेपोराइजेशन प्रोसेस होगा। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा रेफ्रिजरेंट जो कि लो प्रेशर लिक्विड की फॉर्म में है, वो ये लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में रखी हुई फूड आइटम्स या जो आइटम्स को हम प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, उनसे लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा और अपनी यू कैन से प्रॉपर्टीज लो प्रेशर लिक्विड से लो प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, this absorption of heat at low temperature corresponds to the saturation temperature at the evaporator pressure। और जितनी हीट ये इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करेगा, दिस इज कॉल्ड द नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ऑफ दिस यू कैन से कंप्लीट सिस्टम और refrigerating plant। Okay, this is our required thing, that net refrigerating effect is defined as heat extracted from the substances in the evaporator। Okay, this is the desired thing कि हम जिन आइटम्स को ख़राब होने से बचाना चाहते हैं, लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, तो उनकी लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से उठाकर कंडेंसर में हमारी रेफ्रिजरेंट ये उठाकर ले जाता है और वहाँ पर थ्रो अवे कर देता है, खुद अपनी फेज चेंज कर लेता है। तो इस तरह से ये सिस्टम हमारा चलता रहता है।
अब हम आते हैं कि हमारे कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। तो मैंने कहा 4 तो मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व। इसके अलावा हमारे पास 3 लाइंस भी हैं। सक्शन लाइन, ये मैंने कहा इवेपोरेटर की जो एंट्री पे है दिस इज कॉल्ड सक्शन लाइन। सॉरी, कंप्रेसर की एंट्री पे जो हमारे रेफ्रिजरेंट एंटर कर रहा है कंप्रेसर में दिस इज कॉल्ड सक्शन लाइन। और कंप्रेसर की आउटलेट पे जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैं जिनको कंडेंसर तक पहुंचाने का काम करती है दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज लाइन। ओके, नाउ थर्ड लाइन इज आल्सो देयर दैट इज लिक्विड लाइन, जो कंडेंसर की आउटलेट से रिसीवर टैंक से होते हुए एक्सपेंशन वाल्व तक हमारी रेफ्रिजरेंट को पहुंचाएगी। क्योंकि इसमें रेफ्रिजरेंट हमारा लिक्विड फॉर्म में है दैट इज वाई दिस लाइन इज कॉल्ड लिक्विड लाइन। ओके, तो हमारे पास 7 मेन पार्ट्स हो गए, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन एंड लिक्विड लाइन। और 8वां पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये हमारा रिसीवर टैंक जो कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। ओके, अब ये रिसीवर टैंक बेसिकली ये एक टैंक है जिसमें हम रेफ्रिजरेंट का, लिक्विड रेफ्रिजरेंट का एक लेवल मेंटेन करते हैं ताकि एक्सपेंशन वाल्व में कांस्टेंट सप्लाई आगे होती रहे। ओके, कांस्टेंट सप्लाई इवेपोरेटर और एक्सपेंशन वाल्व में लिक्विड रेफ्रिजरेंट की कांस्टेंट सप्लाई को मेंटेन करने के लिए ये रिसीवर टैंक यूज़ किया जाता है। ओके, सो these all the 8 main parts. Okay, this is the diagram in front of you. I am again repeating this suction line, compressor, discharge line, condenser, receiver tank, liquid line, expansion valve, evaporator. Okay, now the whole, you can say, cycle, refrigeration cycle is divided into 2 parts, high pressure side and low pressure side, या दूसरा नाम हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंडेंसर प्रेशर साइड एंड इवेपोरेटर प्रेशर साइड। तो मैंने एक ये पूरी फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो हाई प्रेशर साइड एज द नेम इंडिकेट्स कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमारे हाई प्रेशर पे रहते हैं, वहाँ पर हमारी ज़्यादा केयर, हमें स्ट्रॉन्ग पाइप्स यूज़ करते हैं, होजेज यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेंट को कैरी करने के लिए। तो हमारे पास देखिए फर्स्ट वन इज़ कंप्रेसर। ओके, दिस कंप्रेसर हाई प्रेशर साइड है, देन डिस्चार्ज लाइन, देन देयर इज़ कंडेंसर, देन देयर इज़ रिसीवर टैंक, देन देयर इज़ लिक्विड लाइन। ये हमारे इस तरह से कह लीजिए ये हाई प्रेशर साइड है। ओके, हाई, H स्टैंड्स फॉर हाई प्रेशर साइड। और बाकी जो पार्ट्स बच गए, इन पार्ट्स में जो हाई लिखा हुआ है मैंने, कंप्रेसर, डिस्चार्ज लाइन, कंडेंसर, रिसीवर टैंक और लिक्विड लाइन, इसमें हमारा रेफ्रिजरेंट का प्रेशर हाई रहता है। ओके, तो इनको हम बोलते हैं हाई प्रेशर साइड या कंडेंसर प्रेशर। ओके, दूसरी जो है लो प्रेशर साइड, दिस वन इज द लो प्रेशर साइड। ओके, इसमें हमारे पास एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर और ये वाला और सक्शन लाइन। ओके, ये 3 पार्ट्स जो है हमारे लो प्रेशर साइड है। तो पूरे डायग्राम को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर साइड। ओके, तो हमारे पास देखिए कट आउट पॉइंट्स कौन से हो गए, ये डिस्चार्ज लाइन जहाँ पर प्रेशर लो से हाई हो रहा है, और इधर एक यू कैन से एक्सपेंशन वाल्व की पॉइंट नंबर 3। ओके, यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर लिक्विड में रेफ्रिजरेंट फेज चेंज कर रहा है। ओके, तो डायरेक्शन में मूव कर रहा है रेफ्रिजरेंट। इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, देन देयर इज रिसीवर टैंक और एक्सपेंशन वाल्व जो कि थ्रोटल वाल्व है। ओके, इस तरह से।
Now we will view some small video to understand this, how the refrigerant works. So you can easily view this, that this blue one is okay compressor, then the refrigerant enters this compressor, ओके उसका प्रेशर राइज हो गया, रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, हीट इनपुट होगी और एक्सपेंशन वाल्व, देन देयर इज इवेपोरेटर, ओके हीट इन और यू कैन इवेपोरेटर हीट कंडेंसर में हीट आउट, ओके। यहाँ पर हमारा T5 डायग्राम दिखाया गया है कि कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारे पास, ओके। हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे इसको। कोऑर्डिनेट्स, ओके, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स मींस इनके हम कौन कौन से डायग्राम्स बनाते हैं, ओके। तो पहला डायग्राम हमारे पास TS डायग्राम, दिस वन, ओके, दिस TS डायग्राम, दिस इज PH डायग्राम। TS means temperature entropy diagram, then PH means pressure enthalpy, okay, this PVC pressure volume, this and this one HS enthalpy entropy chart you can see, okay। now हमारे पास 4 प्रोसेसेस थे, 1 से 2 प्रोसेस कौन सा था हमारे पास कंप्रेसर में, जिसमें हमारा रेफ्रिजरेंट आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन होना था, ओके। तो अगर हम TS डायग्राम की बात करें तो ये 1 से 2, ये वाला फर्स्ट वाला, ओके, 1 से 2 वर्टिकल अप लाइन है, ओके, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, कंप्रेसर में एक पॉइंट से एंटर किया, दूसरे पे एग्जिट, ओके। तो इसमें हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए वर्टिकल लाइन है, ओके। सिर्फ हमारे पास टेम्परेचर राइज करेगा। तो अगर हम दूसरे प्रोसेस की बात करें 2 to 3, कंडेंसेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, कि हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के बाद डिस्चार्ज लाइन से होता हुआ कंडेंसर में एंट्री करेगा, जहां पर वो अपनी लेटेंट हीट कंडेंसर मीडियम को लूज़ कर देगा। तो इस प्रोसेस को हमने बोला था कंडेंसेशन, एंड विच इज़ डन एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये 2 से 3 लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। इसमें हमारी क्या होगी, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है बट प्रेशर भी कांस्टेंट है, बट हमारी एंट्रोपी लॉस होगी, ओके। नाउ 3 to 4 प्रोसेस विच इज़ बेसिकली यू कैन से थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन, ठीक है, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस रहता है, तो इसको हम ब्रोकन लाइन से यानी यू कैन से डॉटेड लाइन से शो करते हैं 3 to 4 ये, ओके। 4 to 1 हमारा इवेपोरेशन है एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वाला, ओके। तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली एंट्रोपी इंक्रीजेज, सो देयर इज हॉरिजॉन्टल लाइन। सो इस तरह से 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, ये 4 प्रोसेस मिलकर एक कंप्लीट रेफ्रिजरेशन साइकिल बनाते हैं, ओके। तो ये हमारे पास था TS डायग्राम। इसी तरह से हम PH चार्ट बनाते हैं, ओके, और फिर PV डायग्राम और HS डायग्राम, इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली रेफ्रिजरेशन साइकिल में दिस TS डायग्राम को कॉमनली यूज़ करते हैं और दिस PH चार्ट को कॉमनली यूज़ करते हैं, ओके, टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ओके। I hope you have understand this very simple lecture on this simple vapor compression system. So we have discussed the various parts
processes, refrigeration cycle, and the simple vapor compression cycle on the different coordinates, that is on TS diagram and pH chart. Thank you. Meet you in the next lecture.